Hello, a very good evening, students. Today we will continue with the Heron's formula, and next topic is your perimeter and semi-perimeter of a triangle. We all are aware of perimeter. Perimeter is the sum of all the sides of a triangle. Let AB be A, BC be B, and AC be C. So therefore, perimeter would be A plus B plus C. Okay, and its semi-perimeter would be A plus B plus C divided by 2, and we denote the semi-perimeter by the letter S. This would be required in Heron's formula. Now are you aware of this? Perimeter is sum of all the sides and semi-perimeter means sum of all the sides divided by 2. Now coming towards the question, if the perimeter of an isosceles triangle is 11 centimeter, we have given sum of the side of an isosceles triangle is 11 centimeter. This would be equal 11 centimeter and its unequal side is 5 centimeter. यानी कि ये है आपकी, let it be x and x. Find its area. तो एरिया फाइंड करने के लिए पहले हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड निकाल लेते हैं. We know that x plus 5 is equal to 11 as perimeter is 11 centimeter. 2x is equal to 6. 11 minus 5 6. Hence x is equal to 3. Therefore 3 and 3. Now the required figure like this: 3, 3 and 5. As in my previous video, I have told you that how to find the height of all the triangle, like equilateral triangle, isosceles triangle. So in this case also, we will just draw one median which is AD. If AD is the median, therefore BD is equal to CD. Hence its total is 5. So BD would be 2.5 centimeter. I'm going to share one easy formula to find the area of an isosceles triangle. Just mark this formula in your brain. Very important formula. Let B would be equal side and A would be ठीक है. तो B हमारी इक्वल साइड यानी कि AB और AC हो जाएगा और A हो जाएगा हमारी अनइक्वल साइड यानी कि BC हो जाएगा. नाउ वेरी सिंपल फॉर्मूला ऑफ दिस इज, इसकी प्रूविंग आपको नहीं आती होती है इसलिए मैं सिंपली आपको ऐसे बता रही हूँ. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है. तो मोस्टली ये जो फॉर्मूला है ये आपको बहुत ही कम बुक्स में मिलेगा, बट ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. बी है लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स एंड ए इज द लेंथ ऑफ थर्ड साइड यानी कि योर बेस और अनइक्वल साइड. सिमिलरली इस केस में बी क्या हो जाएगा 3 एंड ए वुड बी 5. तो हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला. आपको ये फॉर्मूला एज इट इज लर्न करना है, इसकी प्रूविंग मैं आपको बाद में बता दूंगी, बट फिलहाल के लिए एज इट इज इसको लर्न कर लो. इसकी प्रूविंग आपको नहीं आती होती है.
where A is equal to 5 and B is equal to 3. Now we'll put the formula. A था 5 अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर, b 3 था, 3 3 is 9, 9 4 is 36, 36 minus a square 25 upon 4. 36 minus 25, it would be 9. Sorry, it would be 11. तो आंसर would be 5 root 11 upon 4 centimeter square. I hope that this question would be clear to you. Simply you need to learn only this formula. Area is equal to A under root of 4b square minus a square upon 4 square units. Okay, next है आपका Heron's formula. तो Heron's formula में आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है S की. S is your सेमी पैरीमीटर. ठीक है. अब जो इसका फॉर्मूला होता है वो कहता है इस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to under root S minus A bracket open, S minus B bracket close, bracket open, S minus C bracket close. So this is your required formula which we will be using in the entire chapter. S is semi parameter multiply by S minus A. A क्या था आपका first side, B second side and C would be the third side. So this is your Heron's formula. S हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? Sum of all the sides A plus B plus C divided by 2. It is known as a semi-perimeter. I hope it is clear to you. तो बस आपका यही फॉर्मूला है. हमने इसी फॉर्मूला के आसपास जो हमारा पूरा चैप्टर है वो रिवॉल्व कर रहे हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन से हमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. तो पहले हम इस केस में Heron's फॉर्मूला यूज़ करेंगे. S निकाल लेते हैं. S कितना होएगा? 12 प्लस 16 प्लस 20 डिवाइड बाई 2. 12 प्लस 16 28, 28 प्लस 20 48, 48 डिवाइड बाई 2. तो S आ गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर. तो एरिया क्या कहता है? एरिया कहता है जो Heron's फॉर्मूला है वो होएगा S minus A, S minus B, S minus C. Remember this chapter is very scoring and very very simple. S कितना था आपका? 24. 24 माइनस A कितना था? 12. 24 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 12. 24 माइनस 16 8. 24 माइनस 20 4. तो इसको हम या तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं या हम सिंपली इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे. 24 को कैसे निकालेंगे? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24. 12 के 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12. 8 के 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8. 4 के 2 इंटू 2. अब सिंपल काउंट कर लो कितने 2 हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. 10 2 एंड 3 कितने हैं? 2. तो 10 2 में से 5 2 बाहर आ जाएंगे और एक 3 बाहर आ जाएगा. टू 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 32 3 96. तो आंसर वुड बी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. कभी भी पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे. अगर पूरी कैलकुलेशन करेंगे देन
पूरा मैसअप हो जाएगा एंड मिस्टेक्स के बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. सो वी विल सिंप्लीफाई इट बाय मेकिंग इट्स फैक्टर्स एंड देन वी विल, अगर इवन है तो उसमें से एक एक निकलता रहेगा, अगर रूट में आ जाएगा तो फिर हम उसको रूट को सॉल्व नहीं करना. हीरोन्स फार्मूला चैप्टर में अगर कोई भी आपका आंसर रूट में आता है सो वी विल नॉट सॉल्व दैट रूट को एज इट इज़ रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला. अब यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले वाला फार्मूला यूज करोगे, बिकॉज यहाँ पे गिवन है बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला हैविंग बेस 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, यानी कि 4, 6 एंड 6. सो एस क्या हो जाएगा 6 + 6 + 4, 6 6 12, 12 + 4 16. तो एस आपका हो जाएगा 8. मैं यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशंस कर रही हूँ, पूरा नहीं सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ये आप खुद अंडरस्टैंड करके कर लेना. अगर डाउट होगा तो मेरे से व्हाट्सएप पूछ लेना मेरे से. एरिया इज इक्वल टू एस क्या था आपका 8, 8 - 6 2, 8 - 6 2, 8 - 4 4. फैक्टर्स निकाल लो इसके. 2 2 = 4, 2 = 8, 2 × 2 पहले ही थे, 4 के 2 × 2. तो कितने 2 है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7. एज अ नंबर इज ऑड तो हम पहले 6 को कंसिडर करेंगे. 6 में 3 2 बाहर आ जाएंगे विच वुड बिकम 2 × 4 2 = 8 और एक √2 आपका रूट के अंदर ही रहेगा. तो आंसर वुड बी 8√2 centimeter square. We know the value of √2 is 1.41, but we will not put that value because in Heron's formula we will not solve the value of root. आप उसको as it is निकालोगे. आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, बट इसको एज सच निकालोगे देन आंसर वुड बी नॉट रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन. If the side of triangle are 35, 54 and 61, then find the length of its longest altitude.